Good morning, students. Good morning to the students of Assam and all the TechU faculties present over here in this webinar. So today we are going to discuss about a Let's Crack the Gate initiative. So I am Ankita Chandrakar, currently serving as an assistant professor at Engineering College Jhalawar in Rajasthan. I'm Masters of Technology from NIT Raipur. So let's begin. So today we are going to discuss this. Yes, I'm not on the wrong slide. So how many of you have seen this web series? Yes, students, how many of you have seen this web series? Ma'am. Yes. So I think most of you might have seen this web series. So this web series by the Viral Fever Aspirants is a great web series which is running currently on the Indian digital space, and which which tells us the journey of the preparation journey of UPSC aspirants. So whether it be a UPSC aspirant, whether it is a GATE aspirant, or whether it is any other aspirants, the preparation journey of aspirants is similar. So this heartwarming web series it has really touched millions of hearts. So will be is the recording just on now? Shall I? Yes, ma'am. Continue. It is recording. Okay. So can you identify the character, students? So who is he? Anyone? Abhilash Sharma. Okay. Okay. So, and this one, she is? Dharya. And this one, Guri. And this one, SK. So anyone can say what is the full form of SK? SK stands for? Is related to Dhumraketu, Shwetketu. Yes, very good. So yes. So is anything missing in the poster? Sanjeev Bhaiya. Okay. Okay, very good. So something is missing in the poster, and that is the emotion. So somebody, while I was going through this web series, so somebody has beautifully mentioned in the comment that Abhilash is a character and Sandeep Bhaiya is an emotion, and that truly stands true for this web series. So this was the most emotional scene of the web series, which I felt on my part. And so here we have our Sandeep Bhaiya, the emotion and the motivation of millions of young Indians. So whether you are a current aspirant or whether you was an aspirant few years back, everyone has related with this awe-inspiring story. So why I have why I have started with this is that in this web series, Sandeep Bhaiya has touched us with many motivational dialogues, and one of his most famous dialogue was this: "Arthik sthiti theek na hai hamari." So when he said this, this has really touched everyone's heart, because in our Indian society, we Indians, a lot of students we can relate, because a lot of students lack the basic financial resources for education. I feel that quality education should be accessible to everyone, and with this very thought, we TechU faculties thought of taking this Let's Crack the Gate initiative, so that any student facing any financial crisis should not be debarred from quality education, and can prepare for GATE during this tough times too. So let's see what's this Let's Crack the Initiative. So this Let's Crack the Gate initiative is a pan-India free GATE training program by all India TechU faculties, and they are offering absolutely free of cost GATE training, GATE classes to all the students. So what is TechU 3? Let's first know. So TechU 3 is Technical Education Quality Improvement Program in its phase 3. It has been commenced from the year 2017, and it has been funded by World Bank
and it has been operated by Ministry of Education, and it has been further implemented by the National Project Implementation Unit, which is an unit of Ministry of Education. So this TechCube 3 project mainly visions to improve the quality of technical education. तो अगर मैं हिंदी में कहना चाहूँ तो ये ऐसा जो क्वालिटी ऑफ इंजीनियर्स है इंडिया में उसको इम्प्रूव करना था इसका मेन एम। तो जो क्वालिटी है वो स्पेशली बैकग्राउंड एरियाज में हम इम्प्रूव करें, इसलिए ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था। तो थ्रू दिस प्रोजेक्ट how this project and GATE has been related, so how TechCube 3 and GATE has been associated. So through this project, they have tried to provide great training to students via some coaching institutes. So it was functional before the previous years. This thing was functional, as you might have seen in your college too. So in that GATE training, what has happened that the performance of students of these engineering colleges in the focus states have improved significantly. It has improved significantly, and many of the students have even scored under 100 AIR in their first very attempt. So students did not to waste their 1 year, did not to waste their money in the coaching institutes, and they also got AIR into AI under AIR 100 in GATE exam and got selected in many PSUs too. Also, many students have opted for higher degrees at IISc, IITs, NITs, and other premier institutes and are doing researches over there. So this is what the association of TechCube 3 and GATE. But due to the pandemic situation, this could not be done further. So who are TechCube faculties? Let us know. So these faculties are IITians and NITians. They're alumni of IITs, NITs, and other premier institutes. So they were doing some other jobs somewhere at MNC, some were teaching in some other colleges. So they were doing some different kind of jobs. And then there was this project which had a vision to improve the technical education quality in the rural areas, in the remote areas of our country, because we TechCube faculties have already felt that there is a need of improvement. So some of us during our bachelor's are belonging to some private institutions or state institutions. So there, the teaching level there, the quality of education there, and the quality of education present at premier institutes are totally different. So in order to match with that, so that जैसा हमारा IIT NIT का या किसी भी प्रीमियर इंस्टीट्यूट का माहौल होता है, वैसा माहौल, वैसा कल्चर अगर हम यहाँ क्रिएट करना चाहें, जो ये प्रोजेक्ट का विजन था, तो इसके लिए दिस TechCube faculties came over here. So this TechCube faculties are basically they are doctorate postgraduates from IISc, IITs, and NITs. They have qualified GATEs n number of times. In this TechCube project, they have been trained in active learning and digital pedagogies, and now they are doing some research in cutting edge technologies or the recent times. So basically they thought कि अगर system में घुसेंगे तभी तो system change होगा. So first deserve, then desire. Next, what was the role of this TechCube faculties in the GATE training program, which was already there? So this TechCube faculties, somewhere they were taking GATE classes. Along with the GATE classes, along with the regular classes, they were solving previous year questions with their students so that they get motivated for this GATE classes. They were mentoring students for the GATE classes, and they were trying students to motivate them for research in their final year projects or collaborating them in the collaborative research scheme projects. So, and they also motivated students to pursue higher education. So this was the role of TechCube faculty. So it was a limited role. Then this was benefiting some of the students, especially the students of TechCube colleges, TechCube funded colleges, but not the students all over India. So we need to change some approach. And due to the current pandemic situation also, nothing, things were not, this GATE training could not be further continued. तो जरूरी है कि हम अप्रोच चेंज कर दें लाइफ को. सो एज यू हैव सीन इन द TVF वेब सीरीज कि जब अभिलाष इज अ वेरी क्रिटिकल थिंकर, मोस्ट ऑफ द टाइम ही थिंक्स and takes things negatively. So when his love interest Dharya came into his life, and when she taught that you need to change your approach,
आपको अप्रोच अपनी पॉजिटिव रखनी होगी. तो विद दैट थॉट थिंग्स हैव स्टार्टेड चेंज फॉर हिम. तो लाइफ में आपके अकॉर्डिंग अगर कुछ ना हो तो आपको अपनी अप्रोच बदल लेनी चाहिए. विद दिस थॉट वी हैव ब्रॉट यू लेट्स क्रैक द गेट इनिशिएटिव in order to not only to benefit the students of the TechU funded college, but also to the students all over India with this initiative. So we have broadened our role in the GATE training program. So what are the objectives of this Pan India Free GATE training program? So the first objective is that there will be free online GATE training, that too by highly qualified, young and dynamic faculties. So these are highly qualified. They have qualified GATE many times. They are trained in the active learning and teaching advanced pedagogies, and they are young. So they will be teaching you with some fun animations, and they will teach you just like a friend. Then the next objective is at regular intervals, they will be discussing the preparation strategies with you, so that what subject you need to cover, when to cover, it gets clear to you all. Fifth, students will be monitored continuously. Their performance will be continuously monitored by the help of test series, which we will be launching soon. Then online study materials and assignments are also being provided in the Telegram forum. So there we are having some great discussions about GATE questions, about some doubts. So daily we are solving that things. So it is very beneficial for all the students, all the learners. Even believe me, even teachers get learnings from students. And the next objective is to motivate the students to pursue higher studies and do research. So in this current time, research is so much important, and our country especially lacks in this. So we need to be a very good researcher. We need to pursue our higher education. So for this all things, it's very important, as already you know that GATE is a very important prestigious exam to be qualified. So these things will help the nation to boost. Next, we will be discussing that what are the key points of this Pan India Free GATE training program. So we generally want to enhance the process of teaching learning. We are going to teach students, and we are going to also learn from students, because the students' feedback is so much convincing for us, is so much nice for us, that we will improve our teaching methods by that. Then this is an open access platform, so that all over India aspirants can join it, and it is available on YouTube channel TechU Faculty. So you can join it. You can just access it anywhere from your phone. Just you need a internet connectivity for it. And then most of our TechU faculties are polyglots. They know various languages. So we are thinking of introducing some. We are thinking of introducing some lecture videos based on regional language, because क्योंकि रीजनल लैंग्वेज से कनेक्ट आता है. लाइक यू कैन फील दैट व्हाई डू वी फील कनेक्टेड विद सम ऑफ आवर रीजनल मूवीज और रीजनल सिनेमा इज व्हाट वी हैव दैट कनेक्ट विद दैट. तो रीजनल लैंग्वेज से एक कनेक्ट डेवलप होगा. सो फॉर दैट वी आर ट्राइंग दैट वी विल बी इंट्रोड्यूसिंग some lecture videos on regional languages too. Now, what benefits our learners are going to get from this? So the first and the foremost benefit is they'll be getting free live or recorded video lectures. And this is the first time ever that a complete package is provided free of cost. So the complete GATE syllabus package of the 5 major branches, namely electrical, electronics, mechanical, civil, and civil. So these branches will be providing, and this will be available at our YouTube channel TechU Faculties. Next, there will be doubt clearing forum at the students Telegram. Already we have 4,000 plus students at the Telegram forum, and students are connecting with us and asking doubts, and there is some good discussion going in that Telegram groups. Then there is a free complete web test series, which will be consist of topic test, subject test, full mock test, and this whole test series will be offered to you completely free of cost.
And then we'll be having previous year questions based on GATE, EAC, and PSUs. So lectures will be delivered to you continuously for previous year questions too. And then we'll be having daily quiz in the Telegram forum for understanding the fundamentals, some interview questions like this. And then there will be a lot of special videos which will be demonstrating exam guidance, your career opportunities. We'll be also going with the revision of the subjects. Also, you will be getting all the study material in the Telegram group. So these are the benefits which our learners are going to get. So the मौका जिंदगी इम्तिहानों से ना हम डरे. So whenever life will be giving us chances, it will be putting us so many exams, so many hurdles. तो हम इससे कभी भी ना डरे और हम continuous एक अच्छे देश को construct करने की और हम चलते रहें. So this is what I wanted to say about our Let's Crack the Gate initiative. And I would like to ask you, as I have related this completely to the web series, I would like to ask you, what's your perspective of Plan B? आपको Plan B से क्या समझ आता है? क्या Plan B होना चाहिए? So any one of you could answer this? Any one of you could answer what is Plan B, what is your Plan B, what you understood by Plan B, and should we have Plan B? Okay, think about it. Yes. प्लान बी का मतलब होता है दूसरा ऑप्शन, मतलब इस तरफ यदि नहीं हुआ तो इस तरफ जाएंगे. ओके, तो क्या आपके पास कोई प्लान भी है? नहीं है. Okay, so anyone else would like to answer this? So it's completely okay if you don't have a plan B, and it's completely also okay if you have a plan B. So if it's not a plan B, then also it's okay, because you are giving 100% to your plan A, and if you have a plan B, then it's okay. We'll be making a balance in your life. So everyone has their own perspective of plan B. So ending on this note, thanking you students, and requesting you to join us with this great initiative. Let's crack the gate. Thank you, Ankita ma'am. Now I would like to hand over to this session to Ajay sir, and it's over to you, Ajay sir. Hello all. आप सबको मेरी आवाज आ रही है? Am I audible to all of you? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. First of all, thank you very much, Ankita ma'am, for explaining explaining this concept so nicely. Yes, sir. Now I will tell you something. जैसा मैम ने भी कहा था कि प्लान बी है, प्लान आपके पास ए है, प्लान बी है. हम लोग कुछ ना कुछ प्लान करते हैं, तो आई ट्राई कि आपको प्लान बी आपके दिमाग में होगा जरूर. और हो सकता है आप जो अभी हमारे साथ डिस्कशन करने वाले हो, इसमें आपका प्लान बी, प्लान सी आपको इसके अंदर कहीं ना कहीं मिल जाए. विल ट्राई. Okay. So as Ankita ma'am told you all about the concept of TechCube Gate classes, right? I will try to add few more points in this. पहले तो मैं आपको जैसे कुछ बातें मैं हिंदी में करना चाहूँगा कि आप सबके दिमाग में ये पॉइंट जरूर आ रहा होगा कि जैसे मैम ने बताया कि हम लोग ये इनिशिएटिव ले रहे हैं, राइट? तो ऐसा क्या हुआ कि हमारे दिमाग में एकदम से ये आया कि हमें करना चाहिए. एज मैम ऑलरेडी टोल्ड यू कि भाई हम सब एसेट हैं. जो भी आप किसी कॉलेज से भी आप पढ़ के आते हैं, चाहे आप इंजीनियरिंग कहीं से भी करते हैं या कुछ भी आप जो आप अर्न करते हैं चीज़ें, आप इस कंट्री के लिए एसेट हैं. और आप रिवर्ट क्या करते हैं? तो एक टीचर अपने स्टूडेंट्स के लिए ये रिवर्ट कर सकता है कि वो एजुकेशन को जहाँ तक पहुँचा सके, जहाँ तक स्प्रेड कर सके इस चीज़ों को, वो उसका काम है, उसकी ड्यूटी है. हम कुछ ऐसा नया काम नहीं कर रहे हैं.
तो ऐसे ही आप लोगों के लिए भी आप कुछ भी सीखेंगे, अपना कोई भी अपॉर्चुनिटी आप सोचेंगे फ्यूचर में मुझे क्या करना है, क्या बनना है, तो साथ में आपको ये भी चीजें सोचनी है दिमाग में कि हमें कंट्री को क्या रिवर्ट बैक करना है, राइट? तो लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ. My name is Ajay Kuntal. I do not know how I'm not able to change this slide. Let me check this first. So my name is Ajay Kuntal, and now it is okay. So I've done my master's from IIT Delhi, and I have worked with IOCL as well as I have worked at Commonwealth Games Place. Am I audible to all of you right now? Yes, Yes, sir. Okay. Okay, great. So I've done my master's from IIT Delhi, and I have worked in Commonwealth Games Place as a project engineer too. And I'm teaching. I've been teaching for engineering services, GATE exams, and any other competitive exam for last 9 years, right? Right now I'm teaching in a college as per the TechCube third concept. अब बात जो हम करने वाले थे कि आपको क्या करना है और आपके पास प्लान ए है, प्लान बी है, प्लान सी है, उससे पहले वी शुड टॉक अबाउट इंजीनियरिंग, राइट? आप सबके साथ अभी एक कॉन्सेप्ट, एक प्रॉब्लम आप लोग फेस करते होंगे कि आपको लगता होगा इंजीनियरिंग के बाद देयर इज नो स्कोप और कुछ ज्यादा है नहीं करने के लिए. हाउ मेनी ऑफ यू फील द सेम थिंग? हाउ मेनी ऑफ यू? कितने लोगों को लगता है कि ठीक है उसके बाद ज्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं है? जैसे कि व्हेन वी गो अराउंड आई मीट पीपल, तो वहां पर लोग हमसे बात करते हैं कि अभी इंजीनियरिंग में ज्यादा स्कोप नहीं है. आपको लगता है ऐसा? या आप लोगों में से कितने लोगों ने सुना है आज तक ये चीजें? आप तो मेरी बात पहुंच रही है सभी लोगों तक? यस और नो? yes, sir. हाँ, तो आप में से कितने लोगों को ऐसा फील भी हुआ है कभी कि यार हम इंजीनियरिंग कर तो रहे बट दिस इज नॉट द राइट प्लेस और राइट थिंग टू डू, हमें ये नहीं करना चाहिए था, वी कुड डू समथिंग एल्स, कुछ और कर लेते? ऐसा फील हुआ आप लोगों को? नहीं सर. कभी तो हुआ है कभी? हाँ सर, कभी nowadays it is very easy to target a engineer. कोई भी कह देता है यार क्या इंजीनियरिंग कर रहा है, कुछ भी कर लेता, राइट? इट इज वेरी इजी. और हमको भी कई बार लगता है यार वी आर डूइंग नथिंग, बस हम बैठते हैं, चाय वाय पीते हैं, खाना खाते हैं, टाइम पास करते हैं और हम कुछ कर भी नहीं सकते. ऐसा कई बार हमको भी फील हो जाता है क्योंकि दूसरे लोग जो बोलते हैं वो हमारे को फील होने लग जाता है. कुछ टाइम बाद हमको स्ट्रांगली बिलीव भी करते हैं उस कॉन्सेप्ट को, कैसा हो रहा है ना सभी लोगों को. तो अब हमें सोचना है कि हमारे अंदर कुछ ऐसा है जिसकी वर्थ है, मतलब हम कुछ पॉजिटिव कर सकते हैं. तो आप मुझे बताइए आप लोगों के अंदर ऐसा कुछ है, कुछ भी स्ट्रॉन्ग पॉइंट जो आपको लगा कि नहीं वो इंजीनियरिंग में हूँ मैं इसलिए कर पा रहा हूँ? कोई भी, एनी वन ऑफ यू जो ये फील करता हो नहीं ऐसा नहीं है कि कुछ चीजें हैं मेरे अंदर भी? एनी वन ऑफ यू, कोई भी एक बता दीजिए. नो वन? नो वन? आपको कुछ लगा नहीं आपके अंदर कुछ भी स्पेशल है? चलिए एक चीज मैं बात करता हूँ आपसे, आप यस और नो बोले, थोड़ा साउंड आता रहेगा, मेरे को पता चलेगा कि आप मुझसे बात कर रहे हैं. यस और नो जो भी है. ओके सर. ठीक है, तो कभी आपको ऐसा लगा है कि मेरे अंदर कुछ पॉजिटिव है या नेगेटिव है कुछ भी? मैं आपको आपकी एक स्ट्रेंथ बताता हूँ, आप सबके अंदर वो स्ट्रेंथ है. लाइक आपने पूरे सेमेस्टर कुछ प्रिपेयर किया होगा, कुछ तैयारी करी होगी, है ना, पर आपको सब्जेक्ट पूरे सेमेस्टर में हो सकता है कई बार समझ में नहीं आता है, राइट? होता है ऐसा कई बार क्लासेस के अंदर ऊपर से निकल गया. यस सर. आपको समझ में नहीं आया आपने क्या पढ़ा क्लास के अंदर, सब ऊपर से चला गया आपको. होता है ऐसा सर. होता है right? यस सर. But the night before the exam, semester exam, क्या होता है? Night before the exam, तब क्या एक होता है? रात में सब सिलेबस कंप्लीट हो जाता है सर. एक रात पहले जो पूरा सेमेस्टर में आपको you were not able to do the derivations, you were not able to do the numericals, जो आपको समझ में नहीं आ रहे थे, but night before that exam आपने सब कर दिया. उस रात को वो आपको कॉन्सेप्ट समझ में भी आ गए, न्यूमेरिकल्स भी आपने सॉल्व कर दिए और सुबह तक आपने प्रिपेयर भी कर लिया पूरा का पूरा सिलेबस. ऐसा होता है कि नहीं होता है? आए ना? यस यस सर. और नो? यस सर. Yes, sir. So this is your strength. This is your strength. You can prepare the complete subject in a night. है ना? सोचो उसी इंटेंसिटी के साथ if we can prepare or we can work for few months, तो हम क्या अचीव नहीं कर सकते?
Are you getting my point? Yes, sir. Are you getting my point? Yes, So sir. this is your step. Yes, sir. Don't let other to make fun of an engineer. किसी को मजाक मत उड़ाने दो. आप इतने सारे एग्जाम्स को क्रैक करते हैं, आप इतने सारे सेमेस्टर एग्जाम वाइवा इतने प्रोसेस को आप क्रॉस करते हैं और आप प्रिपरेशन करते हैं साथ में, तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले फील पॉजिटिव अबाउट योरसेल्फ. जो भी आप कर रहे हैं रेस्पेक्ट दैट. ओके, देन वी कैन स्टार्ट. सो मैं अपने बारे में मैंने बता देता हूँ. आई स्टार्टेड फ्रॉम विलेज. मैं एक गांव में मतलब बहुत छोटी जगह में पढ़ा हूँ. हमारा एक सरकारी स्कूल था, गवर्नमेंट स्कूल वाज देयर. इट इज स्टिल देयर. So there were no stools, no chairs, no furniture. We used to sit on the floor. जमीन पे बैठते थे. In rainy season there were no classes. Still there are no classes. और वहाँ से right now I'm teaching people from IITs even. तो वहाँ से कर सकते हैं. It's just about you respect yourself. तो आप लोग अपने आप को respect करें. I think आप सब लोग काफी अच्छी जगह से start कर रहे हैं. So you can do anything. Just you need to respect yourself and need to respect your profession. Right? Are you getting my point? All of Yes, you. sir. Yes, sir. Yes, sir. So, Yes, sir. so with this, now I'm going to start. I think there is some problem with my PPT presentation. So just click on the PPT. Okay, that I'm trying. Wait. Okay. So now I'll tell you about GATE Engineering Services PSU. आपने प्लान B सोचा है, नहीं सोचा है. Today you can find your plan B or plan C. आपने जो भी सोचा है, you can find it. I'm not sure about it, but it might help you, right? So my name is Ajay Kuntal. मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, पर आप उसके साथ-साथ क्या करने वाले हैं अपने लिए वो important है. What is GATE? मैंने आज हम जो हमारा कॉन्सेप्ट है Let's Crack the Gate, इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे What is GATE? गेट क्या है? आप लोगों ने सुना है इसके बारे में नाम? एनी वन ऑफ यू? फुल फॉर्म क्या है इसका? गेट. एनी वन ऑफ यू? Graduate एप्टीट्यूड test Test of of engineering. नहीं, ठीक है. देखो, ग्रेजुएट तो हर कोई हो जाता है. आपके पास एप्टीट्यूड है और टेस्ट आप इंजीनियरिंग में देते रहिए. मैं आपको कहूंगा अगर आपने ये कंप्लीट वर्ड को समझ लिया ना, इसको अडेप्ट कर लिया आपने, तो आप उसके बाद यू आर परफेक्ट. किसी भी फील्ड में यू कैन सर्वाइव. मैं कहता हूँ बैंकिंग में भी आप जाते हो ना, तो अभी आप वहां पे बोल सकते हो कि मैं परफेक्ट हूँ, मैंने काफी कुछ किया हुआ. ये आपको हेल्प ही करेगा अगर आपके अंदर चीजें हैं. जैसा कि मैंने बात करी गेट. सो ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग, इट इज कंडक्टेड बाय दिस 7 IIT, जो पुराने 7 IITs हैं, एंड ISC बैंगलोर. ये तो आप सबने सुना ही होगा जब आप ग्रेजुएशन करने आए होंगे. IITs पुराने कौन कौन से हैं? एंड ISC बैंगलोर. सो 8 टोटल 8 जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो इस एग्जाम को कराते हैं एवरी ईयर. And there is cycle you can see. जैसे कि 2008 में बात करूं, it was conducted by ISC Bangalore. Then after 8 years, 2016 ISC Bangalore. 9 में कराया था IIT रुड़की ने. Then after 8 years, 2017 IIT रुड़की. Same IIT बॉम्बे ने 2021 में भी रिसेंटली कराया. इससे पहले 8 years पहले कराया होगा 13 में, राइट? अब खड़गपुर, अब जो नेक्स्ट एग्जाम है हम सीधा बता सकते हैं IIT खड़गपुर विल कंडक्ट दिस. तो ये तो है इट इज अबाउट गेट के होता क्या, एग्जाम क्या है. अब इससे होता क्या और आपको देना क्यों है, that is more important. Now who can appear? So all of your engineering students, तो आपका क्राइटेरिया मैंने थोड़ा हाईलाइट किया हुआ है. If you are in third year even, you can appear in this exam. So this is the criteria, basic criteria. आपका 4 years का अगर आप engineering complete कर रहे हैं तो प्री फाइनल नहीं है, because right now 3 साल की वैलिडिटी है इस एग्जाम की. आप इसमें अपेयर होने के बाद 3 साल तक इस एग्जाम को, इसकी इस गेट स्कोर कार्ड को जो आपको मिलेगा उसकी वैलिडिटी रहेगी. और आप कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं वो आप अभी देखने वाले हैं. नाउ दिस इज द क्वेश्चन, व्हाई गेट? व्हाट इज गेट? तो ठीक है, बहुत सारे एग्जाम होते हैं, पता रहता है हमको, बट व्हाई गेट? गेट ही आपको क्यों देना है? इफ आई कैन सी कि मेरा प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, ये मुझे इसमें मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी मिल जाए कि यहाँ पर फिट हो सकते हैं. ठीक है, अगर मुझे इतने सारे चांसेस मिल जाएं एक ही एग्जाम से विद अ सिंगल एग्जाम, तो आई थिंक मुझे ये एग्जाम जरूर ग्रांट करना चाहिए. यस और नो? से यस और नो, सिंपली बात. अगर मुझे दिखता है कि मेरा प्लान ए, प्लान बी, प्लान सारे इसके अंदर आ जाते हैं, तो विद अ सिंगल एग्जाम की सिंगल प्रिपरेशन, बिकॉज इंडिया में यू कैन सी देयर नंबर ऑफ एग्जाम्स, है ना, और फॉर एवरी एग्जाम देयर इज अ पर्टिकुलर वे कि आपको कैसे प्रिपेयर करना है.
पर ऐसे एग्जाम बहुत कम है जो जॉइंट फॉर्म में होते हैं कि ठीक है इसमें कंबाइंड फॉर्म में होते हैं। इसी एग्जाम से विद सिंगल एग्जाम देयर आर मेनी एंट्रीज, है ना, बहुत सारी आपको वैकेंसीज या अपॉर्चुनिटीज आपको मिल जाती है। तो दिस इज वन ऑफ द, ऐसा एक एग्जाम है ये। नाउ व्हाई गेट, मैंने जैसे आपको बताया प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी। नाउ यू कैन सी द नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज। फर्स्ट ऑफ ऑल एमटेक, जो आपने सबने सुना होगा, राइट, मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी। राइट नाउ यू आर डूइंग योर बीटेक, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी। सो मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी ऑब्वियसली पीजी कोर्स हो गया। मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी की क्या क्या, उसके बाद क्या फायदा है, ये क्या स्कोप है, वी विल डिस्कस वन बाय वन। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, पीएसयू वन ऑफ द ऑप्शन। मैं कहा वापस से आई डिस्कस वन बाय वन। पीएचडी, पीएचडी तो आप जानते हैं, डॉक्टरेट, राइट। एफपीएम बहुत इंपॉर्टेंट है, फेलोशिप प्रोग्राम इन मैनेजमेंट। नाउ समथिंग डिफरेंट, फेलोशिप प्रोग्राम इन मैनेजमेंट फ्रॉम आईआईएम्स। अब आप इसके बारे में बात करने वाले हैं, विल टॉक अबाउट मास्टर ऑफ साइंस, एमएस। ठीक है, जैसे पीजी कोर्स एमटेक है वैसे ही एमएस है, मास्टर ऑफ साइंस। आपने सुना भी होगा, आपके बहुत फ्रेंड्स दे आर डूइंग एमएस फ्रॉम अब्रॉड आल्सो। टीचिंग, व्हाट वी आर डूइंग राइट नाउ, so teaching is one of the option. This is one of the option, this is not the compulsion की टीचिंग ही करेंगे एमटेक गेट के बाद, ऐसा कुछ नहीं है। टीचिंग is one of the option. Research work, state industries, you can see there are number of opportunities, आप देख पा रहे हैं। उसके अलावा भी होंगी, आप लोग, मैं आप लोगों से कहूंगा कि आप लोग जहां भी देखते हैं आप लोग मुझे ढूंढें और मुझे बताएं, so I can add this. ठीक है, so there are number of opportunities. मास्टर्स में कर सकते हो, पीएसयू पब्लिक सेक्टर जॉब में जा सकते हो, पीएचडी डॉक्टरेट कर सकते हो, फेलोशिप प्रोग्राम इन मैनेजमेंट, master science, teaching, research, state industries. We'll take them one by one. मैं आपको थोड़ा सा एक आइडिया दे देता हूँ कि if you are getting few other suppose 70 marks or 60 marks out of 100, because GATE is about 100 marks question paper, 100 marks का एक पेपर होगा आपका। इसके अंदर आपकी अपॉर्चुनिटीज क्या है, तो मैंने कुछ बता दी हैं। जैसे प्राइवेट कॉलेज के अंदर भी मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी साइंस होता है आपका, आप एमटेक वहां भी कर सकते हैं। तो आप इफ यू आर गेटिंग लेस मार्क्स तब भी आपकी पॉसिबिलिटी है आपका हो जाए इसके अंदर। बट प्राइवेट सेक्टर कंपनीज में होंगे थोड़ा सा, हम कहेंगे कि थोड़ा अच्छा स्कोर चाहिए। ठीक है, एनआईटी अच्छा स्कोर चाहिए, ऑब्वियसली आईआईटी एनआईटी के लिए अच्छा स्कोर चाहिए। आईआईएम्स मैंने बताया, फेलोशिप प्रोग्राम इन मैनेजमेंट। निटी के अंदर आपका एक कोर्स होता है, मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में, पीजीडीआई, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। आप निटी को सर्च भी कर सकते हैं, कैट से बहुत हाई स्कोर पे मिलता है ये। ठीक है, एमएस आपको अब्रॉड से करना है, मैंने कहा ना, आपके कुछ फ्रेंड जरूर कर रहे होंगे एमएस, राइट। PSU पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, PSU लाइक ONGC, IOCL, NTPC, इनमें तो सो गेट स्कोर आपका 60 से प्लस है तो चांसेस होते हैं, राइट। IIT, ISC का तो बहुत कट ऑफ आ ही जाता है ना। जैसा मैंने आपको प्रॉमिस किया था, विल टॉक अबाउट ईच एंड एवरी प्रोग्राम वन बाय वन। सो नाउ एमटेक, तो एमटेक का क्या फायदा है सर, आपको बहुत लोगों ने बताया होगा कि भाई एमटेक करने से यही होता है या वही होता है। सो देयर नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज आफ्टर एमटेक, यू कैन सी लाइक बेटर जॉब्स। जैसे आप बीटेक के अंदर आप जाते हैं तो मोस्टली कंपनी विजिट्स द कॉलेज, उनमें होता क्या है, दे टेक यू फॉर द इंजीनियरिंग प्रोफाइल, जो इंजीनियरिंग का नॉर्मल प्रोफाइल होता है GET, ठीक है, ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग, इस प्रोफाइल के लिए आपको लेते हैं। बट आफ्टर एमटेक थिंग्स आर डिफरेंट। जो IITs और NITs में मैंने देखा है कि कंपनीज विजिटिंग द कॉलेजेस मोस्टली फॉर द R&D डिपार्टमेंट। 99% कंपनीज तो मैंने देखा था हमारे डिपार्टमेंट में, 99% कंपनीज थी R&D डिपार्टमेंट के अंदर। अदरवाइज नॉर्मली इफ यू ट्राई फॉर R&D डिपार्टमेंट इट इज वेरी डिफिकल्ट। तो अगर आपको R&D डिपार्टमेंट में आना है तो एमटेक के थ्रू जाने के अपॉर्चुनिटी आपके, कहता हूँ, स्कोप ज्यादा है। बेटर फॉर्म्स, अच्छी कंपनीज मिलेंगे लाइक टाटा, मारुति, होंडा, अगर आप मैकेनिकल की बात करें, या फिर आप इलेक्ट्रॉनिक्स की कोई बात करें, सैमसंग या कोई भी जो अच्छी अच्छी कंपनी है, सिविल की बात करें, आपकी जो भी स्ट्रीम्स हैं उसमें आप भी जो कोर देखते हैं, तो कोर सेक्टर वो आपको इसमें ज्यादा मिलेगा। बेटर जॉब प्रोफाइल में कहूँगा, हाई पे पैकेजेस ऑब्वियसली आफ्टर एमटेक। रिसर्च वर्क जैसे आपके रिसर्च पोजीशन आती है कई कंपनीज के अंदर, या इसरो, DRDO और GRF, बार, इनके अंदर रिसर्च पोजीशन है। थर्ड पॉइंट में बोलूंगा ब्रांड नेम, ऑब्वियसली अगर आपके नाम के पीछे देयर इज IIT और NIT तो ब्रांड तो होएगा, तो इट विल बी वेरी इजी टू अप्रोच सम कंपनी और नो सम कुछ ऐसा आपको करना है, काम भी करना है, यू वांट टू डू सम स्टार्टअप, ठीक है, तो उसके लिए अगर आपको लोन भी लेना है तो इट विल बी इजी फॉर यू बिकॉज नाउ ब्रांड नेम इज विद यू। स्टाइपेंड, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है। स्टाइपेंड यू विल गेट नियरली अराउंड 12,400 रुपीज
for 24 months. जो आपका कोर्स होता है 24 months का होता है ड्यूरेशन, you will get that stipend. तो during your studies you will getting some money. तो ये आपके लिए it will help you, even fee पे करने में भी काम हो जाता है. नेक्स्ट है मोर कैरियर ऑप्शन. जैसे मैंने आपको बताया आपके पास ABC से प्लान होने चाहिए, तो आप लोग देखेंगे. मैंने कहा टीचिंग अगर आपको मन है, रिसर्च आपका मन है, और कोर सेक्टर, यही हम प्लान करते हैं इंजीनियरिंग में, कोर कंपनीज हमें मिले. सो कोर सेक्टर यू कैन प्लान, रिसर्च सेक्टर यू कैन प्लान, टीचिंग इवन. सो यू कैन टारगेट दीज थिंग्स. सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन. सबसे पहली बात, अगर आपको एक पर्टिकुलर मतलब मैकेनिकल बहुत बड़ा है या सिविल बहुत बड़ा है, उसमें एक पर्टिकुलर आपको एक डोमेन को हिट करना है, सो यू कैन गेट द अपॉर्चुनिटी. इसके अलावा मैं आपको बात बताऊं, जैसे मैंने कहा रिसर्च पर, there are two different entries, OCES and DGFS in Bhabha Atomic Research Center, right? आपने गेट का एग्जाम दिया, you appeared in GATE exam and you got some score, suppose. तो बार्क क्या करेगा, ये वैकेंसी को फ्लोट करेंगे, right? Now they'll give you the minimum gate cutoff score, like 700 gate score उन्होंने रख दिया, तो उसके बाद they will directly call you. वो आपको डायरेक्ट कॉल कर देंगे इंटरव्यू के लिए, और आपको आने जाने का जो आपका जो होता है ट्रेवल अलाउंस है वो भी आपको देते हैं. They'll give you. उसके बाद इंटरव्यू होगा. अगर आप उस इंटरव्यू को क्रैक करते हैं, you will get this opportunity. You can join them directly in OCS entry. और if you want to do your MTech, कि सर मुझे तो मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी करना है ना, if you want to do your MTech, they will give you the area. कहाँ पर वो आप MTech किस डोमेन में चाहते हैं, right? They will suggest to the college. जैसे IIT, किस IIT में कहाँ करना है, उनके कोर्सेज आते हैं. So you can do your MTech. During MTech, you will get the stipend from them, right? And after your MTech, they will absorb in DGFS. So you are getting these two offers. Even in defense में भी कॉलेज है, DME करके उसका नाम है, आप लोग देखेंगे, हम लोग बाद में वीडियो बनाएंगे. उसके अंदर भी सेम है. अगर आपका सिलेक्शन उसके अंदर होता है गेट स्कोर के ऊपर, they will give you stipend during your MTech, and after that they will directly absorb in your defense department. तो मैंने आपको पहले बता दिया, रिसर्च में ISRO, DRDO, डिफेंस बार्क, these are the opportunities. रिसर्च वर्क में you can, right? So I think ये MTech के बाद, it is about MTech only. अभी मैंने और बातें की नहीं है, it is only about MTech. Next, PSU, public sector undertaking. So public sector undertaking आप लोग सुना है, आप लोगों ने नाम कोई बताइए मुझे, कौन कौन से आपने सुने हैं? Anyone of you? कोई भी नाम आपने सुना हो पब्लिक सेक्टर में? All India Limited. Oil, ONGC, ISRO, Oil India Limited, ONGC, yes, IOCL, NTPC, IOCL, okay, NTPC, SAIL, Steel Authority of India. very good, very good. बस बहुत है, बहुत, very good, very good, very good. So तुम्हारा इंटरेस्ट मुझे दिख रहा है. So corporation where government owns 51% or more company security. So government के पास इसका 51% of the stake. Government can be union government or state government. अगर state government है, then it will be state PSU, right? अगर center government का है तो center PSU होगा. तो आपने भी नाम दिए, कुछ state की होंगी, कुछ center की होंगी, right? So benefits क्या है PSU के? सबसे बड़ा फायदा है जो हम लोग देखते हैं PSU में, आपने नाम सुना होगा, कोई आपके सीनियर्स होंगे, आप उनसे बात करिएगा. फर्स्ट ऑफ ऑल हाई पे पैकेजेस, सैलरी बहुत प्यारी है, हाई पे पैकेजेस, पर्क्स एंड अलाउंसेस, बहुत अलाउंसेस हैं. जैसे सपोज यू आर इन ONGC, so your salary nearly around 1 lakh per month. Apart from that, you will get 1 lakh rupees, 1,10,000 rupees for buying a new laptop every 3 years. This is your incentive. 3 साल में आपका लैपटॉप खत्म हो गया, you will get this. आप लैपटॉप ले लीजिए, 1,10,000. 20,000 just for buying a goggles, क्योंकि आप ऐसे डोमेन में काम करते हैं, आप इस एरिया में काम करते हैं, आपको गॉगल्स की जरूरत पड़ेगी, तो 20,000 रुपए every 2 years. सूटकेस वगैरह खरीदने के लिए 5,000 पर every 2 years. और बहुत कुछ है, पेट्रोल डीजल आपकी गाड़ी में लगेगा ना, राइट? So you get 9,000 something 400 rupees per month. These are the stipend. Extra perks, allowances we can say. Job security is there because government is involved, right? Government का job है, उसमें आपका involvement है, तो obviously job security is there. और public sector है, public का वैसा पैसा भी लगा हुआ है, तो जो आपका इंक्रीमेंट है, आपको पैसा जो आपको मिल रहा है, सैलरी है, वो काफी अच्छी है. पब्लिक रिस्पेक्ट, ये तो इन इंडियन कल्चर सोसाइटी इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? पब्लिक रिस्पेक्ट. सो अगर आप ऐसी एसोसिएशन में आए, डेफिनेटली यू विल गेट दिस. कोर सेक्टर,
फर्स्ट ऑफ ऑल जो जितनी भी PSUs है दे आर कोर, तो आपको अपने डोमेन के में काम करने में मिलेगा, लाइक यू आर इन BHEL और ONGC और IOCL, यू आर फ्रॉम मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, जो भी आपका बैकग्राउंड है, यू विल गेट योर कोर सेक्टर. वर्क लाइफ बैलेंस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन प्राइवेट सेक्टर. द थिंग्स, मैं ऐसा नहीं कहूँगा बुरा है हर एक के अंदर, बट थिंग्स आर दैट जो आपकी वर्किंग आवर्स है वो बहुत ज्यादा है, एंड जहाँ पे भी आप रहोगे आपको अपना खुद का घर लेना पड़ता है रेंट वगैरह पे, या अपना खुद का आपको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा. बट इन PSU जनरली करते क्या है लोग, दे डेवलप देयर ओन टाउनशिप, दे प्रोवाइड यू ईच एंड एवरीथिंग, जो भी फैसिलिटीज हैं. इफ यू आर गुड इन स्पोर्ट्स, दे आर मेनी थिंग्स. आप स्पोर्ट्स में भी आ सकते हो, आपने सुना भी हुआ कि भाई ONGC की टीम से खेलता है, या देयर आर मेनी थिंग्स टू डू, राइट. तो वर्क लाइफ बैलेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि लाइफ टाइम आपको ये काम करना है, तो ये बहुत जरूरी है. हाई पैकेज से हमने स्टार्ट किया था, ये सब एक्स्ट्रा है. मेडिकल फैसिलिटी, मेडिकल जो आपके कवर है, वेरी इंपॉर्टेंट, वो मिलना बहुत जरूरी है. नाउ सम ऑफ द PSUs आर ONGC, BPCL, BHEL, HPCL, Power Grid, NTPC, DDA, BEL, GAIL, MECL, IOCL, HECL. You can see there are number of PSUs. और किस किस पोस्ट पे आती हैं मैं ज़्यादा डिस्कशन में नहीं करूंगा. यू कैन सी द पे स्केल, कितनी अच्छी सैलरीज हैं, और मैंने उसके बारे में पहले भी आपको बता दिया. और सिलेक्शन प्रोसेस सबका आप देख सकते हो. मोस्टली दे गिव सम वेटेज टू द गेट स्कोर, देन पर्सनल इंटरव्यू. तो गेट स्कोर सबके अंदर दिखाई दे रहा. इससे पहले दे यूज्ड टू टेक दियर सेपरेट एग्जाम्स. आफ्टर दैट उन्होंने MOU कर लिया गेट IITs के साथ. नाउ देयर इज अ सिंगल एग्जाम, गेट. नाउ सर मुझे इंजीनियरिंग करना ही नहीं था, आई एम नॉट फिट फॉर दिस. मुझे तो कोई कोर्स करना था, MBA का कोर्स करना था, और मुझे इकोनॉमिक्स में जाना था. मेरा कोई रिलेटिव है वो अच्छा कर पा रहा है ना, ही इज इन IIM. so I am giving, this is thing for those people who are who are preparing for CAT exam. CAT exam जानते हैं लोग, है ना, सभी लोग, and it is very difficult for the people like me, है ना, जो ऐसे बैकग्राउंड से निकल के आए, उनके लिए I think this is one of the best opportunity. फेलोशिप प्रोग्राम इन मैनेजमेंट, आपने सुना था इसके बारे में कि पहले किसी ने इसके बारे में? एनीवन? अरे नो कह दीजिए, कोई बात नहीं है. नो सर. नो सर. तो ठीक है, आज के बाद आप नो नहीं कहोगे किसी को. सो फेलोशिप प्रोग्राम इज व्हाट? इट इज डॉक्टरल प्रोग्राम इन मैनेजमेंट. इट इज लाइक PhD इन मैनेजमेंट फ्रॉम IIMs. ड्यूरेशन 4 to 5 ईयर. ठीक है, MBA भी 2 साल में होता है, इसमें 4-5 साल में यू आर गेटिंग डॉक्टरेट. तो ये बहुत अच्छा है, उससे आपकी बोर्डिंग लॉजिंग फ्री है. स्टाइपेंड यू आर गेटिंग 30,000 पर मंथ फॉर 2 years. जो शुरू के 2 years यू विल गेट 30,000. इट्स लाइक सैलरी यार, इतना तो पैकेज मिलता है अभी, राइट? 30,000 पर मंथ. आफ्टर 2 years यू विल गेट 35,000 मंथ, है ना, 35,000 मंथ. प्लेसमेंट ऑब्वियसली अगर आप IIMs में हो तो प्लेसमेंट के बारे में तो आप भूल जाओ. बस यू हैव टू मेंटेन योर, जो भी आपका वहाँ पे क्राइटेरिया रहेगा, भाई ठीक है, आपका CGPA जो भी रहता है वो आपको मेंटेन करना पड़ेगा. अलाउंसेस, सीधे अलाउंसेस, यू विल गेट 1 लाख रुपीज कॉन्टीजेंसी अलाउंसेस. आप जैसे एंट्री करते हो, भाई ठीक है, आपको बुक्स खरीदनी है तो उसके लिए आपको कुछ स्टाइपेंड मिलना चाहिए, राइट? यू विल गेट 50,000 रुपीज फॉर बाइंग ए न्यू लैपटॉप. एक नया लैपटॉप भी ले लो, आप कॉलेज में आए हो तो. देखो, आपको ये एडमिशन लेने के बाद आपको चीजें मिलती हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन गो फॉर सम कॉन्फ्रेंसेस. आप बाहर भी कर सकते हो और इंडिया में भी कर सकते हो. लाइक शायद 3 या कुछ होता है कॉन्सेप्ट कि 3 आप बाहर कर सकते हो. एंड फॉर दैट आपको जहाँ भी कॉन्फ्रेंस आप करते हो, फॉर दैट ऑल्सो यू विल गेट सम मनी. 60,000 रुपीज ऐसा कुछ होता है. मैं अभी फिगर्स एग्जैक्टली नहीं बता रहा, वो मुझे देखना पड़ेगा. बट यू विल गेट दैट ड्यूरिंग योर स्टडीज. एरिया आपको अगर देखना है कौन कौन से एरिया में आई कैन डू द मैनेजमेंट कोर्स. सो इकोनॉमिक्स, फाइनेंस, HRM, इंफॉर्मेशन सिस्टम, मार्केटिंग, प्रोडक्शन, ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट. देखिए, देख रहे हैं आप लोग नीचे स्क्रीन के ऊपर? यस और नो? यस सर. Yes, sir. इंटरेस्टिंग Yes, है sir. या नहीं? आपको Yes, sir. सैलरी स्टाइपेंड भी मिल रहा है. अपार्ट फ्रॉम दैट यू आर गेटिंग अपॉर्चुनिटी टू गेट इनटू दिस IIMs, राइट? Yes sir. नाउ अदर अपॉर्चुनिटीज. इसके अलावा आपका मन है क्या कर सकता हूँ सर? सो MS, बहुत लोग आपके फ्रेंड कहते होंगे यार कि अपन वो कर लेते हैं, कि ये वाला कोर्स कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, सो वी कैन
go abroad और वहाँ से कोई कोर्स कर पाएंगे. So simply you need to search these institute. NUS, National University of Singapore, नेशनल टेक्निकल यूनिवर्सिटी NTU. आप देखिए इसके अंदर ये कहाँ स्टैंड करती है वर्ल्ड के अंदर. बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं. इफ यू वांट टू डू MS फ्रॉम देयर, देन गेट स्कोर कार्ड इज वैलिड. सबसे बड़ी बात, आप यहाँ के लोकल एग्जाम में अपीयर हो रहे हो, बट दिस गेट स्कोर कार्ड इज वैलिड फॉर दिस. आपको टीचिंग में तो मैंने बता ही दिया था. मैंने सर्च अपॉर्चुनिटी के आवाज से बताया था. बार्क के अंदर देयर इज स्कीम. CSIR में आप जा सकते हैं. स्टेट इंडस्ट्रीज ऑपेगन, PSPCL, गेट स्कोर कंसीडर करती है. मैंने अभी, आप लोग हमारे वीडियोस देखेंगे, उसके अंदर अभी 2 वीडियोस हमने निकाले हैं, 2-3. तो उसके अंदर जो वैकेंसीज आई हैं, लाइक NHEI के अंदर अभी आई हुई है, NTPC के अंदर अभी वैकेंसी आई हुई है, जिसने भी 2021 वाला गेट दिया था. दे आर टेकिंग पीपल डायरेक्टली जो अभी गेट में अपीयर हो गए. एंड आई कैन टेल यू वन थिंग वेरी श्योरली कि अभी होने वाला क्या है. इन दिस पैंडेमिक सिचुएशन थिंग्स आर वेरी डिफिकल्ट एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कंडक्ट अ न्यू एग्जाम. इट इज वेरी डिफिकल्ट. कोई भी प्राइवेट कंपनी अगर कराने जाएगी, कोई सिलेक्शन प्रोसेस कराने जाएगी, और कोई गवर्नमेंट सेक्टर या कोई प्राइवेट या कोई भी PSU कराने जाएगी, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू टेक अ सेपरेट एग्जाम. इन दैट केस यू मस्ट, यू कैन थिंक अबाउट इट कि हो क्या सकता है. सभी लोग एक एग्जाम पे जो कि गेट एग्जाम है, दे कैन टारगेट दिस और दे कैन टेक पीपल फ्रॉम दिस. तो आपके दिमाग में जो डाउट्स थे पहले कि सर प्लान A कि मुझे इंडस्ट्री टेक्निकल में जाना है, प्लान B कि सर मुझे नॉन टेक्निकल में जाना है, प्लान C सर मुझे मैनेजमेंट करना है, क्या कुछ डाउट आपके क्लियर हुए हैं? से यस और नो, जो भी आपको लगा. टेल मी. सर. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, वेरी गुड. आपको प्लान B मिला ना अपना कहीं ना कहीं देखने के लिए सभी को. ठीक है. आप इसके बाद सर. जी, अब आपको मैं इतना बता दूं, जितना अंकिता मैम ने बताया था, काफी देर बाद मैंने कर लिया, हालांकि बस इतना बताऊंगा, ये जो भी प्रोग्राम अभी चल रहा है, दिस इज ओनली फॉर यू. अगर आप इस पर एक बार जाके देखिए, क्लास लेके देखिए. मैं ये नहीं कहता कि हम ऐसा कर देंगे कि बिल्कुल, अगर हो सकता है आप वहां जाएं और आपको वो चीज लगे कि नहीं, दिस इज समथिंग व्हाट आई कैन डू, और कोई सब्जेक्ट आप पढ़ के देखें, मुझे ऐसा लगता है कि अभी अच्छा हो रहा है, तो आप इसको अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करें. मुझे लगता है ये जो हम काम कर रहे हैं, ये हर उस बच्चे तक पहुंचना चाहिए जो आपकी तरह या तो अफोर्ड, मैं कहता हूँ बहुत लोग अफोर्ड भी कर सकते हैं, जो कि कोई ऑनलाइन टीचिंग प्रोग्राम या फिर एक्सपेंसिव जो कोचिंग प्रोग्राम से अफोर्ड नहीं कर सकता, उन तक ये जरूर पहुंचना चाहिए कि ऐसा कुछ भी है. और जो अपॉर्चुनिटीज मैंने आपको बताई, ये सब उन लोगों तक पहुंच जानी चाहिए कि हाँ, हम इससे ये सब कुछ कर सकते हैं. ठीक है, थैंक यू वेरी मच. अगर आपका कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, अदरवाइज फिर मैं हैंड ओवर करूंगा. यहाँ तक किसी को डाउट है तो कोई बात नहीं. अगर आपको अभी डाउट नहीं आ रहा है, आप बाद में कमेंट कर सकते हैं. कमेंट करके हमारे चैनल पर आइएगा, वहां पर कमेंट करके पूछ भी सकते हैं. यहाँ पर संजीव सर से भी बात कर सकते हैं, आप किसी से भी बात करिएगा, आपको हेल्प मिल जाएगी इस बात. ठीक है, थैंक यू वेरी मच. ओके, Thank you, Thank sir. you so much, sir. Thank you, sir. Okay. Okay, now thank you very much, अजय सर. आपने बहुत अच्छा बच्चों को समझाया. आई थिंक बच्चे सारे मोटिवेट हो गए हैं गेट प्रिपरेशन के लिए ऑलरेडी. सो नाउ आई हैंड ओवर दिस सेशन टू दीपिका मैम. दीपिका मैम, ओवर टू यू. Okay, thank you, Sanjeev sir. First of all, thank you very much for inviting me here. And before moving ahead, I would like to introduce myself. So let me share my screen. Okay, can I confirm whether my screen is shared or not, and I'm visible or not? Yes, it is ma'am. visible. Yes, ma'am, it is visible. Okay, once again, thank you so much, Sanjeev sir. And so let me introduce myself. I am Deepika Kamboj. I am working as an assistant professor in MBM Engineering College in CSE department. I have done my master's from NIT Jalandhar. So I think everyone is doing great during this pandemic. Yes or not? Guys? Yes, ma'am. Okay,
Perfect. Yes, So let's start with the session. And as all of you know that this session is basically organized for the GATE and the initiative taken by TechU faculties. So as of now, you have seen that what is the initiative taken by TechU faculties and what are the opportunities of GATE exam. But I am here to tell you about the GATE exam pattern. So shall I start? Yes, ma'am. Okay, perfect. See, I need your full concentration because what happens अगर आपको पैटर्न नहीं पता होता है, I don't know आप में से कितने लोगों ने शक्तिमान देखा है, बट वहां पर लास्ट में एक क्लिप आती थी दैट इज छोटी छोटी मगर मोटी बातें. ऐसा क्यों होता था? क्योंकि there are some silly points, छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जिनमें हम मिस्टेक्स करते हैं. Right? So those are the points which we are going to discuss here to give you the basic idea, even complete idea about the GATE exam pattern. So let me start here. The GATE exam pattern, here total 65 questions come, right? And these 65 questions are categorized into two sections. Number one is general aptitude and second section is technical section, right? जनरल एप्टीट्यूड में टोटल 10 क्वेश्चंस होते हैं जो कि हमेशा फिक्स्ड होते हैं एंड इसका जो सिलेबस होता है दैट इज कॉमन फॉर ऑल द ब्रांचेस, राइट? एंड these 10 questions are further divided in such a way that 5 questions are of 1 mark questions and again 5 questions are of 2 marks questions. So total how many marks you will get from general aptitude? 15. Very good, right? And out of 65 questions, if already 10 questions are coming from general aptitude, then definitely remaining 55 questions will come from technical section. And technical section is like in my case, it is computer science. And if you are from civil or mechanical, that is somewhere branch specific, correct? And in technical section also, the questions are further categorized that 25 questions are of 1 mark questions and 30 questions are of 2 marks questions. Now, can you tell me how many marks questions will come from technical section? 85. 55. 85. So total कितने questions, कितने marks का exam हो चुका है आपका? 100. 100 marks. Perfect. और ये 65 questions के लिए जो टाइम ड्यूरेशन आपको दी जाती है दैट इज 3 hours. 3 hours means 180 minutes, right? So this was all about the number of questions. Next, move towards the type of questions. So there are 3 types of questions which are asked in GATE exam, and number 1 is MCQs. सबको पता है what is MCQs? Right? MCQs is multiple choice questions. In this, what happens? We are given with the 4 options and we have to select just one option. Yes or no? And Yes. right. Second type question is MSQs. That is multiple select questions. And this, what happens? We are again given with the 4 options, but there is a possibility that more than one options are correct. Like if the options are A, B, C, D. So can anyone tell me what will be the pattern of MSQs? Can A and C both options can be correct? Yes, ma'am. Right. So in MSQs, more than one options can be correct. And third type of question is NAT question, that is numerical answer type. इसमें आपको कोई ऑप्शन गिवन नहीं होता है. आपको क्या करना है? क्वेश्चन को सॉल्व करना है. सॉल्व करने के बाद आपको अपना आंसर टाइप करना है, राइट? अब आंसर आप कैसे टाइप करेंगे? सी, कभी कभी क्या होता है, प्रॉब्लम सॉल्व करना आपके लिए प्रॉब्लम नहीं होता है, टास्क नहीं होता है. प्रॉब्लम आती है क्योंकि आपका जो गेट एग्जाम होता है दैट इज कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जिसमें साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता है, राइट? सो यू हैव टू यूज वर्चुअल कैलकुलेटर देयर.
और क्योंकि हम उससे फेमिलियर नहीं होते हैं, हमें वर्चुअल कैलकुलेटर को यूज करने की आदत नहीं होती है, सो व्हाट वी हैव प्लान्ड टू make a video where we will show you how to use that virtual calculator, right? क्योंकि आप प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं एग्जाम में, आपको पता होता है स्टेप्स क्या फॉलो करने हैं, लेकिन जब बात आती है वर्चुअल कैलकुलेटर को यूज करने की, उस केस में आपको थोड़ी प्रॉब्लम आती है। आई डोंट नो आप में से कितने बच्चों ने अभी ये फेस किया है या नहीं किया है, बट अगर किसी ने फेस किया है तो डेफिनेटली प्रॉब्लम आती है। और इनिशियली तो इवन अगर आपका नॉर्मल फोन का कैलकुलेटर है और आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर दिया जाता है तो उसमें भी प्रॉब्लम आती है, बिकॉज देयर आर सो मेनी ऑप्शंस दैट समटाइम्स यू गेट कंफ्यूज्ड कि हाउ टू यूज दोस ऑप्शंस, राइट? सो फॉर दैट वी हैव प्लान्ड टू मेक अ वीडियो ऑन दैट, but you need to subscribe our channel if you want to watch such kind of videos which can help you in getting good ranks in your GATE exam. Next is one more thing I would like to tell you here about NAT questions is, suppose your question's answer is 10.26, right? And you have answered only 10.2. There is a possibility, yes or no? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Right. So now the question, और suppose करिए कि जिसने आपका गेट एग्जाम बनाया है, जिसने वो क्वेश्चन डिजाइन किया है, उसके अकॉर्डिंग आंसर इज 10.26 और आपने क्या आंसर किया है 10.2, तो वहां पर एक रेंज आपको दी जाती है लाइक 10.2 to 10.3। इस रेंज के बीच जो भी आंसर आप करेंगे that will be considered as correct answer, right? तो अभी एक्चुअली ये प्रॉब्लम मेरे खुद के साथ हुई थी when I was giving GATE exam। मैंने खुद 2 क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं किए थे थिंकिंग कि पता नहीं अगर मैं 10.2 करती हूँ, 10.26 करती हूँ, उसकी वजह से कोई नेगेटिव मार्किंग ना हो जाए। आप सबको पता होगा गेट एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग होती है, बट वो नेगेटिव मार्किंग कैसे होती है दैट वी विल ऑल्सो सी इन नेक्स्ट स्लाइड, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग हर टाइप के क्वेश्चन के लिए अलग तरीके से होती है। कैसे होती है उस चीज को आपको बहुत ध्यान से देखना है, क्योंकि वहां जब तक आपको ये क्लियर नहीं होता है कि नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है और किस क्वेश्चन में है किस में नहीं है, तो आपको प्रॉब्लम आती है। सो लेट्स हैव अ लुक। मार्किंग स्कीम आपको पता है टोटल 65 क्वेश्चंस होते हैं, जो कितने मार्क्स के होते हैं 100 मार्क्स के, राइट? और ये 100 मार्क्स किस तरीके से डिवाइडेड होते हैं, 30 मार्क्स आपके 1 मार्क वाले क्वेश्चन से आते हैं एंड 70 मार्क्स आपके 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन से आते हैं। यस और नो? एनी डाउट एज ऑफ नाउ? एनीवन? No, ma'am. No, ma'am. ओके, ठीक है। तो टोटल आपका कितने मार्क्स का क्वेश्चन होता गेट एग्जाम होता है? 100 मार्क्स का गेट एग्जाम होता है। अब अगर हम बात करते हैं निगेटिव मार्किंग की, तो निगेटिव मार्किंग कैसे होती है आपकी गेट एग्जाम में? प्लीज ध्यान से सुनिएगा। अगर आपका 1 मार्क का क्वेश्चन है, सी देयर इज 1/3 नेगेटिव मार्किंग। इफ योर क्वेश्चन इज ऑफ 1 मार्क, देन नेगेटिव मार्किंग विल बी ऑफ 1/3, correct? And if your question is of 2 marks, then negative marking will be of 2/3. 2/3, correct, right? लेकिन ये फॉलो होता है सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यूज के केस में। नेगेटिव मार्किंग किस केस में होगी? सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यूज में। सेकंड हमारा कौन सा टाइप का क्वेश्चन होता है? एमएसक्यू, जिसमें हमारे पास मोर देन 1 ऑप्शंस करेक्ट होने की पॉसिबिलिटी होती है। अब सपोज करिए एमएसक्यू टाइप क्वेश्चन है जिसमें ABCD 4 ऑप्शंस आर गिवन एंड द करेक्ट ऑप्शंस आर A and C, right? लेकिन you are not able to identify whether C is correct or not. You have just answered option A. In that case, what should happen? आपने partially आंसर किया है ना, आपका ABCD 4 ऑप्शंस में से only A and C are correct, and you have answered only option A. So can anyone tell me what should be the marking scheme here? Half marks. Half mark. Okay, you mean to say that partial marking, right? If it is of 2 Yes. marks, you will
you will be given with 1 mark, and if it is of 1 mark, you will be given with 0.5 marks, right? This is what you मैम think. पूरा गलत हो But- जाएगा मैम. But actually, right, it doesn't happen. Partial marking is not possible in case of MSQs, right? Neither partial marking happens in MSQs nor even negative marking. तो अगर आपने ऑप्शन ए करेक्ट किया है, उस केस में ना तो आपको पार्शियल मार्किंग की जाएगी, ना ही आपको नेगेटिव मार्किंग की जाएगी. तो आपको कितने मार्क्स मिलेंगे? 0 mark. Perfect, right? And similarly, in case of NAT questions, that is numerical answer type, what happens if you have answered within the range? कौन सी रेंज? जो कि जिस प्रोफेसर ने क्वेश्चन सेट किया है, उन्होंने उस आंसर की एक रेंज डिफाइन की है. अगर आपका आंसर उस रेंज के अंदर आता है, you will get full marks, and if it doesn't lie within the range, you will get how many marks? 0 marks, right? तो क्या NAT क्वेश्चन में नेगेटिव मार्किंग हो सकती है या होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए, right? तो आपके NAT क्वेश्चंस में एंड MSQs क्वेश्चंस में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है. नेगेटिव मार्किंग इज ओनली ऑन इन केस ऑफ व्हिच टाइप ऑफ क्वेश्चंस? MCQ. Perfect, MCQs, right? So is this clear, marking scheme and the questions? Yes, ma'am. Okay, so next is important dates. Important dates means कि आपका गेट एग्जाम का नोटिफिकेशन कब आता है, लास्ट डेट क्या होती है फिल करने की, एग्जाम कब होता है, रिजल्ट कब आता है. Let's have a look, right? And I'm not saying these are the correct, dates. These are not correct dates. This is just an approximation, right? कभी कभी डेट्स ऊपर नीचे थोड़ी बहुत होती हैं, लेकिन आइडिया आपको लेकर के रखना है कि इस टाइम के अकॉर्डिंग नोटिफिकेशंस ये एग्जाम तब होता है. तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म कब अवेलेबल होता है? ऑन वेबसाइट, दैट इज अराउंड फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर. व्हाई आई हैव मेंशन्ड 2021 हियर? Why I have mentioned 2021 here? Because we are talking about GATE 2022, right? Coming GATE कौन सा है? 2022 में आएगा ना. अभी 2021 वाला तो जा चुका है, right? That's why I have mentioned 2021. Next, last date of application form submission क्या होती है? It's around first week of October. ठीक है, लेकिन again I am saying it's not the correct, right? It is tentative. आपको लिखा भी है, देखो ब्रैकेट में लिखा हुआ है tentative, तो आपको चेक करते रहना है. चेक करने की भी जरूरत नहीं है, हम चैनल पर सब कुछ अपडेट करेंगे, आपको नोटिफाई करते रहेंगे. It's just that you have to subscribe our channel for that, right? थर्ड वन इज एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन. अब सपोज करिए आपने अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर लिया है, बट कभी कभी क्या होता है, हम वहाँ कुछ मिस्टेक्स कर देते हैं और फॉर्म सबमिट करते टाइम हम ये ध्यान नहीं देते हैं. तो हमें एक अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि हमने जो गलतियां की हैं फॉर्म फिलिंग के टाइम पे हम उनको करेक्ट कर सकें. और वो करेक्ट करने के लिए डेट्स क्या होती हैं? वो अराउंड सेकेंड वीक ऑफ अक्टूबर होता है. तो ध्यान रखना ये सारी चीजें, ऐसे परेशान होने की जरूरत नहीं है. इन केस अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप फर्दर अपने एप्लीकेशन फॉर्म को करेक्ट कर सकते हैं. नेक्स्ट वी हैव लास्ट डेट फॉर चेंज इन एग्जाम सिटी. सपोज करिए आपको एग्जाम सिटी चेंज करना है, ठीक है, उसके लिए भी आपको एक डेट दी जाती है या फिर एक टाइम स्लॉट दिया जाता है. उस टाइम पीरियड के अंदर आप अपने डेट्स को या अपने एग्जाम सेंटर को, डेट को नहीं, आप अपने एग्जाम सेंटर को चेंज कर सकते हैं. नेक्स्ट, गेट का जो एडमिट कार्ड होता है वो आपका अवेलेबल होता है फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी एंड एग्जाम होता है आपका फेब्रुअरी फर्स्ट वीक, फर्स्ट एंड सेकेंड वीक. व्हाई फर्स्ट एंड सेकेंड वीक आई एम मेंशनिंग? बिकॉज जो गेट एग्जाम होता है वो अराउंड 27 स्ट्रीम्स के लिए होता है. 27 स्ट्रीम्स मीन्स 27 सब्जेक्ट्स लाइक कंप्यूटर साइंस, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इस तरीके के आपके पास 27 सब्जेक्ट्स होते हैं जिनमें गेट एग्जाम
कंडक्ट किया जाता है जिनके लिए। ठीक, अब सारे सब्जेक्ट्स के एग्जाम्स एक दिन कराना पॉसिबल नहीं है। सो व्हाट दे हैव डिसाइडेड इज कि जो फेब का फर्स्ट वीकेंड होगा, फर्स्ट वीकेंड इज सैटरडे एंड संडे, कुछ स्ट्रीम्स का एग्जाम फेब के फर्स्ट वीकेंड में होगा एंड कुछ स्ट्रीम्स का एग्जाम फेब के सेकेंड वीकेंड में होगा। नाउ इट डिपेंड्स कि आपके एग्जाम, आपके स्पेसिफिक ब्रांच के एग्जाम किस डेट में पड़ता है। और उसके बाद भी देयर आर 2 शिफ्ट्स, वन इज मॉर्निंग शिफ्ट, सेकंड इज इवनिंग शिफ्ट, राइट। तो आपको ये भी चेक करना है कि आपका एग्जाम किस शिफ्ट में है। एक बार आपने एग्जाम अपना दे दिया है, उसके बाद विद इन आई थिंक 1 वीक आपकी आंसर कीज, ऑफिशियल आंसर कीज अपलोड कर दी जाती हैं, जिसको देख के आपको ये आइडिया लग सकता है कि हाउ मेनी मार्क्स यू आर अबाउट टू गेट, राइट। आपने कितनी गलत किए हैं, कितनी आंसर्स आपने सही किए हैं। एंड रिजल्ट कब डिक्लेयर होता है आपका गेट का? वो होता है 3rd वीक ऑफ मार्च 2022, because we are talking about GATE 2022, right? So it's not mandatory that it will always be 3rd week of March. थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, तो it's just that कि वो सब चीजें आपको, it's just an idea, it's tentative. Once the important dates have been done, next come to the registration fee details. जब आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करते हैं तो डिटेल्स क्या होती है? If you are a female candidate, then the application fee is 750 rupees. लेकिन लास्ट डेट के बाद भी एक एक्सटेंडेड पीरियड आपको दिया जाता है, तो अगर आप उस टाइम पीरियड में अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं, वहां पर आपको 500 रुपीज एक्स्ट्रा चार्ज किया जाता है। So 750 plus 500, in that case your application fee will become 1250 rupees, right? Next is if you are SC, ST, PWD candidate, again the application fee is 750 rupees, and if you are filling your application form in extended period, then it will be 1250 rupees. And for all other candidates, the application fee is 1500 rupees, and for extended period 1500 plus how much? 1500 plus 500, which will be 2000. So in that case, those candidates will have to 2000 rupees, right? So this was all about Indian students. And अगर कोई इंडिया के बाहर का कैंडिडेट या सेंटर है, वहां पर एप्लीकेशन फीस आर डिफरेंट, बट दैट इज नॉट रिक्वायर्ड इन योर केस. सो लेट्स मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट, प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी. प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी में क्या होता है? देखिए, सबसे पहले आपको एक प्लान जरूरी होता है, और वो प्लान कहाँ से आएगा, कैसे आएगा, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट. It's just that you have to watch all the videos, all videos which will be provided by us, right? Without fail, आपको बिना ब्रेक किए, क्योंकि होता क्या है, अगर आप किसी एक वीडियो को स्किप करते हैं तो आप नेक्स्ट वाली वीडियो को रिलेट नहीं कर पाते, right? क्योंकि there may be a concept which will be used in the next lecture or next video, right? तो आपको कोई वीडियो मिस नहीं करना है. उसके बाद आपको प्रॉपर नोट्स बनाते चलना है. प्रॉपर नोट्स क्यों बनाते चलना है? अगर आपने एक बार वीडियो देख लिया है, ठीक है, और कभी कभी क्या होता है, आपको कोई कॉन्सेप्ट याद नहीं आता है, सो व्हाट विल यू प्रेफर? यू विल प्रेफर यूजिंग नोट्स, और यू विल प्रेफर टू वॉच दैट वीडियो अगेन, बिकॉज यू डोंट नो वेयर दैट कॉन्सेप्ट हैज बीन डिस्क्राइब्ड. व्हाट विल यू प्रेफर? नोट्स. एग्जैक्टली, आप नोट्स प्रेफर करेंगे, तो उसके लिए आपको नोट्स मेंटेन करना बहुत जरूरी है. और हमेशा क्या होता है, अगर आपको रिवीजन भी करना है, आप वीडियोस नहीं देख सकते हैं, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको नोट्स, अपने नोट्स के पेजेस टर्न करते रहना पड़ेगा. सेकेंड इज कीप ऑन रिवाइजिंग ऑल नोट्स. व्हाट इज द नीड ऑफ रिविजन? क्योंकि ये ह्यूमन टेंडेंसी है, ह्यूमन का नेचर है, भगवान ने ऐसा बनाया है. I'm not saying all 100% people are like this, but 99% people are like this, कि अगर आप किसी चीज को रिवाइज नहीं करते हो तो आप उसको भूल जाते हैं.
ठीक है। और एग्जाम्स ऐसी चीज होते हैं कि उसमें आपको रिवीजन करते रहना पड़ता है। क्यों करते रहना पड़ता है? ताकि आप नहीं भूले, और एक टाइम होता है। अगर आप इतने टाइम के बाद अपने सब्जेक्ट को रिवाइज नहीं करते हैं, आई एम 100% श्योर 99.9% स्टूडेंट्स विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड, राइट। तो अगर आपने मेहनत की है उस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए, तो अगर आप उसको 15 मिनट्स या 20 मिनट्स दे करके रिवाइज कर लेंगे, दैट विल बी बेटर फॉर यू। नेक्स्ट इज मेक ब्रीफ नोट्स। नाउ व्हाट इज द नीड ऑफ मेकिंग ब्रीफ नोट्स इज, देखिए जब आपका एग्जाम होता है, सपोज करिए आपका एग्जाम 3 दिन बाद है, ठीक है, तो उस टाइम पर हमें पूरे के पूरे सिलेबस को एक बार गो थ्रू करना पड़ता है उसके 2-3 दिन पहले। क्यों करना पड़ता है? ताकि कोई ऐसी चीज ना हो जो मिस, जो हम भूल रहे हैं या फिर हमें एग्जाम टाइम में याद ना आए। Do you think it is feasible to turn out all the pages at last moment if you haven't prepared your brief notes? No Is it way. feasible? It's not feasible. So for that you have to prepare your brief notes. अब वो brief notes आप कैसे बनाएंगे, that is up to you. वो आपको देखना है, ठीक है, कि कितना पार्ट आपको, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो मुझे याद नहीं रहती है तो मुझे उनके लिए नोट्स बनाने की जरूरत होती है। आपका अलग हो सकता है, आपको जो चीज मुझे याद है वो आपको याद नहीं रहे, जो मुझे याद नहीं रहती है वो हो सकता है आपको याद रहे। So that is up to you, how will you make your brief notes. Next is don't forget to solve previous year questions. See, very important. Why it is important? क्योंकि जब तक आप previous year questions solve नहीं करेंगे तब तक आपको आइडिया नहीं मिलेगा कि गेट एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, right? So for that you need to solve all previous year questions. Again, for this point I would like to say कि हम जितने भी वीडियोस बना रहे हैं, सारे वीडियोस में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जब जिस टॉपिक को एक्सप्लेन किया जाता है, पढ़ाया जाता है, उसके रिगार्डिंग, उससे रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं हम सारे सॉल्व कराते हैं, राइट? तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो आपके वहां से सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद भी अगर 1-2 बचता है तो उसके लिए वी हैव अदर प्लान्स कि हम उनको कैसे कवर करेंगे, दैट वी विल आल्सो सी, right? Regular practice of maths and general aptitude, very important. And why it is important? Because general aptitude कितने मार्क्स का होता है? We have seen in earlier slides. General aptitude is of how many marks? 15 marks, right? तो 15 मार्क्स का आपका जनरल एप्टीट्यूड होता है, एंड जो टेक्निकल पार्ट हमने बोला है कि 85 मार्क्स का होता है, उसमें आपका इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स इंक्लूडेड होता है, और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स से भी आपका 15 मार्क्स के, अराउंड 15 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। सो आप मुझे बताएंगे, इफ 15 मार्क्स क्वेश्चंस आर कमिंग फॉर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एंड 15 मार्क्स आर कमिंग फ्रॉम जनरल एप्टीट्यूड, total how many marks questions are coming from both these subjects? 30. 30%, 30 marks. So out of 100 marks, 30 marks you are getting from these two subjects only. So you need to command these two subjects. क्योंकि mostly I don't know about other branches or streams, but in computer science generally the cutoff is 25-28. तो कट ऑफ तो यहीं से आपका निकल जाएगा, और अगर आपका जनरल एप्टीट्यूड एंड मैथमेटिक्स अच्छा है, हो सकता है आप पूरा 30 मार्क्स का क्वेश्चन करेक्ट करें, या फिर अगर गलती से सिली मिस्टेक्स हो भी जाते हैं तो आपका कट ऑफ जितने मार्क्स तो कहीं नहीं गए, राइट? एंड उसके बाद आपको टेक्निकल सब्जेक्ट किस लिए है? देखिए, वी आर नॉट हियर जस्ट टू क्लियर गेट एग्जाम, वी आर हियर to get good rank. And why we need to get good rank? Already Ajay sir has told you about all the opportunities. If you perform good in your GATE exam, how many different opportunities you have, right? तो सिर्फ क्लियर करने से कुछ नहीं होता है, आपको एक अच्छी रैंक लेके आनी है, और उस अच्छी रैंक के लिए you can't skip any subject. For that you have to complete all your subjects, right? But regular practice for maths and general aptitude is very important. Next is regular test series. Test series we will provide,
and hopefully that will start from July onwards, right? And test series kaise hogi? There will be like 3 categories. One is topic wise test series, second is subject wise test series, and last one is mock test. टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज से क्या होगा, इन डेप्थ आपको उस पर्टिकुलर टॉपिक की नॉलेज हो जाएगी, उससे रिलेटेड जिस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं वो सारे आपको पता चल जाएंगे. सब्जेक्ट वाइज टेस्ट किसी कोई भी स्पेसिफिक सब्जेक्ट होगा, उस पूरे सब्जेक्ट का टेस्ट होगा. एंड मॉक टेस्ट आर टेस्ट व्हिच विल गिव यू द कंप्लीट फील ऑफ अ गेट एग्जाम, राइट? कंप्लीट फील ऑफ गेट एग्जाम मींस जिस तरीके का आपका गेट एग्जाम होता है, सिमिलरली सेम वही पैटर्न होता है आपके मॉक टेस्ट का. एंड टाइम ड्यूरेशन फॉर मॉक टेस्ट विल बी 3 hours. Last but not least is the group study. And why do we need group study? क्योंकि I don't know about others, but personally I feel कभी-कभी सपोज करिए आप एक कॉन्सेप्ट भूल जाते हैं, ठीक है, अगर आप उसको फर्दर रिवाइज भी करते हैं, या कोई फॉर्मूला ऐसा है जिसको आप भूल गए हैं, आप उसको फर्दर रिवाइज भी करते हैं, तो भी देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वापस से आप उसको भूल जाएं, राइट? अगर आप उसको रिपीटेडली रिवाइज नहीं करते हैं. बट अगर आप अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने जूनियर्स के साथ, सीनियर्स के साथ एक ग्रुप स्टडी करते हैं, और किसी चीज में जहां पर आपको प्रॉब्लम आ रही है, अगर दूसरा इंसान उसको आपको बताता है, there are high chances कि आप उसको दोबारा ना भूलें, right? In that case, group study is very important. So this was all about the preparation strategy. Next is great. Next is GATE exam. See, GATE exam recently MOE means Ministry of Education has proposed that GATE exam will soon turn into exit exam. And what is the mean of exit exam here for engineering? अभी तक क्या होता था, आप लोगों ने सिर्फ आपने 4 years कंप्लीट किए, 4 years के बाद आपको एक डिग्री मिल जाती है, ठीक है, बट नाउ दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन एट ऑल, राइट? फॉर दैट every engineering student has to clear GATE exam, only then he will be given with a degree, ठीक है? तो अब ऐसा नहीं है कि GATE exam is only for PSUs or getting some getting into IITs or NITs. It is not like that. It is going to be an exit exam, ठीक है? And for that every student has to prepare for that, right? And next, a very important quote written by Dale Carnegie, and the quote is, "An hour of planning can save you 10 hours of doing." And what the meaning of this quote is कि अगर आप 1 hour plan करते हैं तो आप अपने 10 hours save करते हैं. विदाउट प्लान आपको नहीं पता होता है कि क्या करना है, कितना करना है और कैसे करना है. बट इफ यू हैव डिजाइन्ड, इफ यू हैव मेड योर प्लान, definitely it is going to save your time. No doubt initially it will take time उस प्लान को डिजाइन करना, बट हम लोगों ने वो प्रॉब्लम भी सॉल्व कर दी है. कैसे सॉल्व की है? क्योंकि ऑलरेडी वी आर प्रोवाइडिंग यू दैट प्लान. कैसे है वो? सब्जेक्ट वाइज आपके सारे के सारे, ब्रांच वाइज, एंड ब्रांच के अंदर भी सब्जेक्ट वाइज सारी वीडियोस सब्जेक्ट वाइज अपलोड की जा रही हैं, ठीक है? प्लान कैसे करना है, कब किस सब्जेक्ट को पढ़ना है, कब कौन से सब्जेक्ट पर टेस्ट देना है, दैट वी विल आल्सो प्रोवाइड, right? So basically the initiative taken by TechU faculties is a complete package in the sense we will give you all the videos related to all the subjects, we will provide you test series, we will notify you regarding the jobs, we will tell you about how to use virtual calculator and many other things, right? So this was all from my side and was related to GATE pattern. Now I would like to say thank you, and if any one of you is having any doubt, then please feel free to ask. Thank you so much, ma'am. Welcome. मैम जैसे कि मैम आपके चैनल में मैम अभी तो CSE के लिए मैम दो टॉपिक्स के वीडियोस अपलोड हुए हैं मैम, डेटा स्ट्रक्चर्स और डिजिटल लॉजिक. Yes. और मैम
OS DBMS TOC मैम ऐसे सब्जेक्ट्स को मैम मुझे लगता है कि अपलोड कर देना चाहिए जल्दी से। Yes, yes. See, OS we are going to start from Tuesday onwards, and TOC hopefully next week. And after that, see, actually we have just started this initiative from May, 1st May. So it is initially it is taking little bit time, but don't worry. By I think mid June you will get all the subjects, at least all the subjects from CSE, right, over our channel, right? And if you are asking about specific operating system and TOC, then I'm damn sure that OS is going to start from Tuesday onwards, and TOC is going to start from I think next week. Okay, ma'am. Thank you, ma'am. Yes. Hello, ma'am. Ji? Ma'am, that one regarding with that one registration for mock test, it'll be the questions are full course or means I one message given by from your Telegram. Yes. That one regarding that mock test. Yes, yes. Questions What do you will want be to know full- about mock test? Miss, yesterday I saw that from your that one Telegram channel that one for registration process for mock test. So this mock test will be full course too. Means Yes, the mock questions test will coming from that. a mock test will cover your complete syllabus of GATE exam, but that is not going to happen right now. It will take some time because until we complete the whole syllabus, how we can set the mock test, right? So initially, let us complete our syllabus, then we will design the mock test for you. Okay, thank you. Okay, any other doubt, guys? Ma'am, Jay? does the topics from 6th to 7th and 8th semester also come in the GATE exam? Yes, definitely. I think so. In some of the colleges, like operating system is in 6th semester, and even compiler design in my college itself, it is in 7th semester. So definitely, but that depends college to college. In some colleges or universities, basically, covers compiler design in 7th semester, which is also a part of GATE exam, and operating system in 6th semester. But if I say that subjects from 2nd year onwards starts coming into GATE, like data structures, you must be studying in your 2nd year if you are from 2nd year, right? And logic design is from 2nd year subject. So from 2nd year onwards, the GATE syllabus starts, but it goes up to like I think 7th semester in some of universities. Okay, ma'am. Right? Gee, any other doubt? And there is a Telegram channel. So you CSE not even CSE students, that is for all the branches like CSE, mechanical, civil, electrical, electronics. You all can join those groups. मैम TIFR के क्वेश्चंस कितने इम्पोर्टेंट है मैम? क्या वो भी सॉल्व करने होंगे हमें? कौन से क्वेश्चंस? मैम टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के जो क्वेश्चंस होते हैं PhD एडमिशन के लिए, वो भी सॉल्व करना होता है क्या? मतलब मैंने सुना है कि उनसे अच्छे क्वेश्चंस आ जाते हैं। Exactly. Actually, उनका लेवल भी अच्छा होता है. If you practice those questions, then definitely it is going to help you in GATE exam also. ठीक है, but still I would like to say that first of all just focus on GATE exam and the test series and the practice questions, and if once you are done with those, then you can move further or you can try other exams, practice questions as well. I want to add something in this. Hello. Yes, sir. हाँ आज कुंता बोल रहा हूँ मैं. I want to add this. First we should prepare for the basic GATE exam. Then after we will try to make some videos. Then how we can prepare for the interviews as well as जो different आपने पूछा जैसे कि एक particular टाटा रिसर्च में क्या होना है, इसके लिए भी we will try. ठीक है ना? तो आप वहाँ comment हमें करते रहिए. तो we'll try to connect the experts.
Okay, any other doubt? If any of you have any doubt, you can ask. Hello, ma'am. Yes, yes, tell me. Sir, is it necessary to study all the subjects or should we focus on some? Look, initially it No, is sir. not necessary. Initially it is not necessary to complete all the subject. So actually जिस subject में आपका सबसे ज़्यादा interest है, start with that subject only. Okay. So start with that subject, complete that subject, and after that, if you have confidence, means first gain the confidence by your favorite subject, and then you can shift by subject to subject. Like suppose for mechanical engineers, अगर आप सेकंड सेमेस्टर में हो तो सेकंड सेमेस्टर में आपका स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल बहुत अच्छा है, थर्मोडायनेमिक्स आपका बहुत अच्छा है, तो यू शुड स्टार्ट विद दो सब्जेक्ट्स. ठीक है, उसके बाद आप गेट का पैटर्न आपने देखा, गेट के पैटर्न में आप यू कैन सी कि किस सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चंस आता है. सपोज इस स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से अगर 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है और सपोज कोई दूसरा सब्जेक्ट है आरएसी, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, उससे 1 या 2 मार्क्स का आता है, और मैन्युफैक्चरिंग उससे 15 मार्क्स का आता है. तो अकॉर्डिंग टू द मार्क्स आप उसके अकॉर्डिंग भी चूज कर सकते हो. ठीक है, जिस सब्जेक्ट से सपोज 1 या 2 मार्क्स आता है और वो सब्जेक्ट बहुत लेंदी है, तो यू कैन स्किप दैट सब्जेक्ट. ओके, सो ये सारा प्रिपरेशन स्ट्रेटजी सब्जेक्ट वाइज वी विल अपलोड इन अवर चैनल, so you all get all the notification, all the preparation strategies in our YouTube channel. I hope you are getting notification of our YouTube channel time by time by your respective TK faculties. Yes or no? Yes, sir. So here now I'll thank to all our speakers, Ankita ma'am, Ajay Kuntal sir, and Deepika ma'am from all Assam engineering students, and thank you all for your valuable time. And I also thanks to all our students for their participation and their time. And one more thing I would like to ask to all the students. I think here all from 5 engineering institutes they have joined: Assam Engineering College, BBEC Kokrajhar, GIST, JEC, Dibrugarh University, and this Guwahati universities. So I would like to confirm that you all are getting notification from this initiative or not. Yes, sir. You are from which college? Yes, sir. Yes, sir. Sir, Guwahati University. Okay, okay, great. Anyone from Assam Engineering College? Anyone from Assam Engineering College, AEC? Okay, anyone from GIST, Jorhat Institute of Science and Technology? So no problem. If you are means not getting notification, you can directly message to any of your TK faculties, and they will let you know all about our initiative. Okay, and please join our YouTube channel for your preparation. Okay. Okay, sir. Okay. Once again, Hello, sir. one more thing. Yes, tell me. Sir, Bolo. Sir, is 1 year enough to study for gates and tracks? 1 year is more than enough. 1 year is more than enough for GATE exam. Okay. अगर आप प्लानिंग के साथ पढ़ते हो, अगर आप स्ट्रेटजी के साथ पढ़ते हो, तो 1 year is very sufficient. Sir, and एक दिन में sir, how many hours should one invest in a day to study? In a day, 4 to 5 hours is sufficient. अगर आप स्ट्रेटेजिकली पढ़ते हो, सब्जेक्ट वाइज फॉलो करते हो, सो मींस अगर आप 2 सब्जेक्ट एक साथ लेके चलते हो, सपोज आप अगर मैकेनिकल के हो तो सोम और थर्मोडायनेमिक्स एक साथ लेके चलते हो, तो सोम विल टेक मैक्सिमम 15 to 20 days, सिमिलरली थर्मोडायनेमिक्स 15 to 20 days. तो आप 15 to 20 days में 2 सब्जेक्ट कंप्लीट कर सकते हो. क्लियर टू एवरीवन? एक सब्जेक्ट अगर आप डेली 2 घंटे 3 घंटे देते हो, तो 2 सब्जेक्ट में कितना हुआ? 4 to 5 hours. So 4 to 5 hours daily is more than sufficient for GATE exam. Okay, thank you, sir. But you need to be very continuous. Means ऐसा नहीं कि 4 to 5 hours आज पढ़ लिया और कल छोड़ दिया.
अगर आप 6 महीने या 7 महीने कंप्लीट 4 to 5 hours डेली पढ़ते हो, so that is sufficient. Anything else? सर किसी इंस्टीट्यूट में सिलेक्ट होने के लिए पार्टिकुलर सब्जेक्ट में मार्किंग जरूरी है क्या? ऐसा No, it एप्टीट्यूड is में not. आपको गेट में ओवरऑल रैंक लाना पड़ेगा. ओवरऑल मार्क्स इज नेसेसरी, नॉट सब्जेक्ट वाइज मार्क्स. ओके. ओके सर, थैंक यू सर. वन मोर थिंग, आज कुछ टेक्निकल रीजन की वजह से बहुत सारे स्टूडेंट ज्वाइन नहीं कर पाए हैं. सो वी विल गो लाइव इन यूट्यूब. आई हैव रिकॉर्डेड दिस सेशन एंड वी विल गो लाइव इन अवर यूट्यूब and I will share the YouTube channel. So those students who were unable to join this session, they can watch this whole session in YouTube. Okay. So spread this message. Spread this message to those students who were unable to join this session. Okay. Okay sir, thank you sir. Okay. Thank you, sir. Okay. Thank you all. Thank you, sir. Once again, I thank